Hello, doctors and parents. A very good evening to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. Today in this session, we're gonna discuss about the NEET PG 2023 All India Round 3 latest update and the information regarding your choice filling, as well as we're gonna discuss about the some important tips regarding your choice filling, that exactly how to do your choice filling, whether there is a auto lock is available or not, how to do your choice locking, exactly when your NRI list will be published, as well as we also gonna discuss about the states counseling update. Also, if you're looking at just eligibility score, then at which all the states you should target, and where there is a possibilities of getting a higher clinical branches like radio, derma, medicine on just eligibility score or not. So these details will be covered up in this video. Before that, if you're new on this channel, if you haven't subscribed to our YouTube channel Admission Media, then do subscribe it, as well as do join our Telegram channel Admission Media, because whatever the latest update, the PDFs and the information bulletin, each and every detail regarding our states counseling, we are continuously posting in our Telegram channel. So if you haven't joined it, do join it, as well as you can join our WhatsApp community group, where your contact details won't be hidden to anyone. The link is in also in comment section. You can join it. Also, you can follow us on our social media platform, that is Instagram. We are posting multiple of the updates also there. Before starting, we are really sorry for those candidates or those parents whom call we are unable to receive. But believe me, if your call is not getting picked up or your call is on waiting, do ping me on WhatsApp. We will be replying, and we are replying to each and every candidate. And as much as possible, we are continuously working and we are replying to each and every candidate. Still, if you haven't got the reply, believe me, you will be getting a reply. So thank you so much. Thanks a lot to each and every candidate, or each and every doctors as well as their parents, who have been continuously working with us, or continuously working as well as believing on our team Admission Media, the workout we are doing, the updates we are giving. So we are really thankful for your support as well as your guidance. But we do share our YouTube channel, because our YouTube channel is sticking somewhere around the subscription. So do share it, as well as how to proceed for the counseling. We are continuously guiding. We are really sorry we are not updating the video, but the description and well the detail we are sharing in our all the platforms. So do join those platforms for the stay updation. If I talk about the choice filling tips, no need to fill each and every branch. चॉइस फिलिंग टिप्स की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले आई विल बी गिविंग यू वन टिप. सारे ब्रांचेस फिलअप करने की जरूरत नहीं है. जो ब्रांचेस चाहिए उन्हीं को पुट अप करो. ओनली पुट दोज ऑप्शंस अबाउट हुम यू आर श्योर दैट यू विल बी ज्वाइनिंग द कॉलेज. नॉन क्लिनिकल सीट्स फिलअप करने की जरूरत नहीं है. अगर आप श्योर हो या आपके रैंक पे लगता है कि आपको नहीं मिल सकता, और यू हैव अ मॉनिटरी इशू, दैट इज बजट प्रॉब्लम है, या एनआरआई डॉक्यूमेंट नहीं है, या प्राइवेट या मैनेजमेंट सीटों के लिए नहीं जा सकते हो, इन दैट केस ओनली पुट द नॉन क्लिनिकल ऑप्शन. क्योंकि अगर आपने इस राउंड में कोई भी सीट अलॉटमेंट ले ली, देन यू विल बी आउट फ्रॉम सम स्टेट्स काउंसलिंग, एज वेल एज जो इसके बाद एक राउंड होना है, दैट इज स्टेट राउंड, उससे भी आप बाहर कर दिए जाओगे. अगर आप स्टेट राउंड तक जाते हो, तो विदाउट एनी डाउट कुछ अच्छे ब्रांचेस या कुछ नॉन क्लिनिकल में भी एफएमटी और फिजियोलॉजी जैसे ब्रांचेस भी मिलने के चांसेस बनेंगे. एग्जैक्टली कहाँ मिलेगा, ये टोटली वर्कआउट के ऊपर डिपेंड करेगा, और कैसे अब आप चॉइस फिलिंग करते हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा. इसी राउंड में सारी चॉइसेस फिलअप करके नहीं जानी चाहिए. एज पर अस अपने स्टेट्स की काउंसलिंग को जरूर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ऑल इंडिया से बेटर चांसेस आपके स्टेट काउंसलिंग में डिपेंड करेंगे. एग्जैक्टली आपका कौन सा स्टेट है इसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन चांसेस जरूर बनेंगे. इफ आई टॉक अबाउट द एनआरआई लिस्ट, टिल नाउ इट हैज नॉट बीन पब्लिश्ड इन द इवनिंग और इन द नून टाइम. वी हैव ऑलरेडी पोस्टेड अ स्टेटस इन विच वी हैव मेंशन कि लिस्ट नहीं आई है. मोस्ट प्रोबेबली अगर नहीं आती है तो चॉइस फिलिंग एक्सटेंड किया जाएगा, एंड योर ऑल इंडिया चॉइस फिलिंग हैज बीन एक्सटेंडेड टिल टुमारो 12 PM, आई मीन 11:59 PM तक आपकी एक्सटेंशन की गई है. आप आराम से कर सकते हो. सारे बॉन्ड डिटेल और बाकी चीज़ें हमने अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर किया हुआ है. एक बार आप उसको गो थ्रू कर लें, स्टाइपेंड गो थ्रू कर लें, उसके बाद ही चॉइस फिलिंग करें. सारे ऑप्शंस को पुट अप ना करें, चीज़ों को ध्यान में रख के करें. जो कैंडिडेट्स इस बार पहली बार काउंसलिंग कर रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि चॉइस फिलिंग अगर आप लॉकिंग नहीं करते हो, द लॉकिंग इज विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो 4 PM. अगर आप लॉकिंग नहीं भी करते हो, या आप भूल भी जाते हो, या बाई मिस्टेक कुछ भी हो जाता है, सो नो नॉट टू वरी, इट विल बी ऑटोमेटिकली लॉक्ड. लॉकिंग मेनली जब आपने सारी चॉइस फिलिंग कर ली हो, तो आप उसको लॉक कर देते हो, जिससे आप कोई अदर चेंजेस ना कर सको. इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 4 PM टुमारो. नहीं भी करते हो आप तो कोई इशू नहीं है. ऑल इंडिया में ऑटो लॉक होता है, मल्टीपल स्टेट्स में ऑटो लॉक नहीं होते हैं. तो स्टेट्स में आप ये ध्यान देना कि आपको लॉक करना पड़ेगा, अदरवाइज जो भी चॉइसेस हैं वो आपकी ब्लैंक आउट हो जाएंगी और आपको काउंसलिंग में सीटें नहीं मिलेंगी. सारे ऑप्शंस पुट अप नहीं करिए, लिमिटेड ऑप्शंस के साथ प्रोसीड करिए. एनआरआई लिस्ट मोस्ट प्रोबेबली विद इन 1 to 2 आवर में आ जाएगी. इन केस नहीं आती है
तो बाई इन द मॉर्निंग अराउंड 10 to 12 PM तक, 10 to 12 AM तक आपकी आ जाएगी. सो नॉट टू वरी एट ऑल. एनआरआई कैंडिडेट्स उसके बाद अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं. एंड एनआरआई कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो फिल अप द मैनेजमेंट कोटा सीट इन डीम्ड यूनिवर्सिटीज. मतलब कि अगर आपकी एनआरआई में कन्वर्जन हो जाती है, इवन इन दैट केस यू कैन अप्लाई फॉर द मैनेजमेंट कोटा सीट्स ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटीज. सेकेंड थिंग, अगर आप एनआरआई में अप्लाई कर रहे हो ऑल इंडिया में, तो डजंट मीन यू विल बी ऑल्सो एनआरआई इन योर स्टेट ऑल्सो. स्टेट्स में आपके ऊपर डिपेंड करेगा. आप चाहो तो एनआरआई भी रख सकते हो, चाहो तो नॉर्मल या मैनेजमेंट कोटा के लिए सीटों के लिए भी जा सकते हो. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू दैट एग्जैक्टली व्हाट यू आर डूइंग इन योर चॉइस फिलिंग एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन. आप बात करें रजिस्ट्रेशन के लिए, तो महाराष्ट्र के रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी द रजिस्ट्रेशन विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 26 to 2 अक्टूबर. जितने एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो यहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं. महाराष्ट्र इज अ क्लोज स्टेट, बट 15% इंस्टीट्यूशनल कोटा और एनआरआई कोटा सीट्स इज अवेलेबल फॉर एवरीवन. तो अगर आपके पास एनआरआई डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल है, तो आप महाराष्ट्र में भी अप्लाई करके यहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर आप एनआरआई सीटें भी ले सकते हो. बात करूँ यूपी की, द यूपी रजिस्ट्रेशन इज स्टार्टिंग फ्रॉम 26 to 29, बिहार 27 to 1 अक्टूबर. Rajasthan choice, registration is up to 29 and the payment facility is also up to 29. तो एक बार चीज़ों को ध्यान से देख लें. If I talk about the MP, 25 to 28 September, छत्तीसगढ़ 25 to 30 September, Karnataka, the registration is already over for round 2. In future, when the registration will be opening, you can apply there also. For Himachal Pradesh 25 to 26, ऑल इंडिया आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि चॉइस फिलिंग की एक्सटेंशन की गई है, थोड़ी टाइम की, मतलब कल तक की टाइम दी गई है. क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मैंने बता दिया. तमिलनाडु ऑलरेडी ओवर, पौंडीचेरी ओवर, तेलंगाना ओवर, जम्मू एंड कश्मीर में ऑलरेडी आपका राउंड 2 चल रहा है. दोज हु आर न्यू एलिजिबल कैंडिडेट्स इन जम्मू इन द स्टेट कोटा, दे कैन अप्लाई ओनली इन द राउंड 3. स्टेट राउंड 2 में आपको अप्लीकेशन नहीं दिया गया है, राउंड 3 में आपको मिलेगा. सो नॉट टू वरी. मल्टीपल स्टेट जहां पे राउंड 2 चल रहे थे एक्सेप्ट कर्नाटका, सबने आपको एंट्री राउंड 3 में ही दी है. कर्नाटका इज द ओनली स्टेट जिन्होंने आपको राउंड 2 में आपको एंट्री दी है. राउंड 2 में आपसे एलिजिबिलिटी के बाद ही उन्होंने चॉइस फिलिंग या रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिया. सो नॉट टू वरी. राउंड 3 में चीजें कैसी करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, दैट विल बी डिस्कस्ड. इफ आई टॉक अबाउट जस्ट एलिजिबिलिटी स्कोर, कैन गेट अ हायर क्लिनिकल ब्रांच, without any doubt you can get. It will totally depend upon that how you are participating in all India as well as your state counseling or the other states counseling. Multiple of the states has a open state where you can, anyone, even the non-domicile candidates can apply and get the seat. हाँ, बजट आपके लिए महंगा पड़ेगा. आई एम नॉट सेइंग कि नेगोशिएशन होगा या नेगोशिएटेड रेट में आपको सीटें मिल जाएंगी. आज के मोमेंट पे एटलीस्ट 60 to 70% कैंडिडेट्स आर देयर जिनके पास ऑलरेडी एनआरआई डॉक्यूमेंट अवेलेबल है. इवन दोज हु आर न्यूली एलिजिबल अप टू द स्कोर ऑफ 10, 20, 50, 60, 70, 100, each and every candidate has a NRI document. तो विदाउट एनी डाउट सीटें आपको मिलेंगी, बट एनआरआई कन्वर्टेड मैनेजमेंट सीटें इस बार चांसेस नहीं है कि किसी भी स्टेट में एनआरआई की सीटें कन्वर्ट हो जाएंगी मैनेजमेंट या इवन इन ऑल इंडिया. ऑल इंडिया में 5 to 6% आप चांसेस लेके चल सकते हो, बट लेट्स सी एग्जैक्टली आपके जब लिस्ट आएगी तब आइडिया लगेगा कि एनआरआई सीटें कितनी कन्वर्ट होने के चांसेस हैं, क्योंकि इसी राउंड में वो कन्वर्ट होकर भी मिलेंगी. इफ एनीथिंग विल बी वैकेंट आउट आफ्टर अप्लाइंग और आफ्टर अलॉटिंग टू द एनआरआई कैंडिडेट. जस्ट एलिजिबिलिटी स्कोर पे भी आपको रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, गाइनीपीडिया सारे हायर क्लिनिकल ब्रांचेस मिलेंगे, बट महंगे बजट पे मिलेंगे. नेगोशिएशन नहीं होगा. अगर आपको कोई लोअर बजट कोट ऑप्शन कर रहा है, कोई सीट बुकिंग या ब्लॉकिंग के लिए आपसे कोई भी अमाउंट मांग रहा है, इट्स टोटली अ फ्रॉड थिंग. नो सीट कैन बी बुक्ड और नो सीट कैन बी ब्लॉक्ड. एवरीथिंग विल बी डन थ्रू द काउंसलिंग इटसेल्फ, बट इट डजंट मीन कि लोअर रैंक पे भी हायर क्लिनिकल ब्रांचेस नहीं मिलेंगी. 110% मिलेंगी. सिर्फ आपको डिपेंड करेगा कि आप कौन से स्टेट्स को पार्टिसिपेट कर रहे हो, अपनी चॉइस फिलिंग कैसे कर रहे हो, क्योंकि आप सारे स्टेट्स में अप्लाई करके भी सीटें नहीं ले सकते हो, लेकिन कुछ एक पर्टिकुलर स्टेट्स में आप इजीली अप्लाई करके हायर क्लिनिकल सीटें भी ले सकते हो एट द स्कोर ऑफ 20, 30, 50, 60, 70, 100 एंड 110 ऑल्सो. बट इट विल टोटली डिपेंड कि आप अपनी काउंसलिंग कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हो, चॉइस फिलिंग कैसे कर रहे हो, कैसी चीज़ों को टारगेट कर रहे हो. इफ यू आर अग्रीइंग विद द थिंग्स एंड इफ यू आर गोइंग विद द काउंसलिंग एट एवरी पॉइंट, अगर आपने हर एक इंच काउंसलिंग को आप समझ सकते हो तो यू कैन डू इट. If you are unable to do it, then you can contact and avail our premium counseling services, in which that we are not giving the commitment regarding your state or the college. But yes, if you agree with the budget, if you are agreeing with the higher clinical branches also, we are giving the commitment कि आपको max to max chances हैं कि आपको वो higher clinical branch भी आपको allot करा देंगे at the lower school also. सारी चीज़ें जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, these are as per the rules and regulation of
MCC, MOHF, NMC as well as the Supreme Court guideline. We are not blocking any seat, we are not doing any kind of booking, but still I am saying कि आपको सीटें मिल सकती हैं. कहाँ पे मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, क्योंकि मल्टीपल स्टेट्स का टारगेट करने से चीज़ें नहीं होंगी. एट अ मोमेंट आप एक ही स्टेट को टारगेट करके चल सकते हो. कौन सा स्टेट रखना चाहिए या वहाँ पे कैसे चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, कैसे काउंसलिंग में अपेयर करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, दीज ऑल थिंग्स अंडर द काउंसलिंग एक्सपीरियंस. अगर एक्सपीरियंस आपके पास है, you are in your family or in your relatives, you every year when medical admission has been done, तो आपको वो चीज़ें ऑलरेडी क्लियर होंगी, आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो. बट अगर आप नए काउंसलिंग में हो तो काउंसलिंग को कैसे प्रोसीड करें, क्योंकि हर एक स्टेप, हर एक चॉइस फिलिंग मैटर करता है. एग्जैक्टली आप उसको प्रोसेस कैसे करते हो, दिस विल डिसाइड कि एग्जैक्टली आपको सीटें मिलती हैं या एलिजिबिलिटी आने के बाद भी आपको सीटें नहीं मिलती हैं. नेगोशिएशन नहीं होगा, डिस्काउंट कोई भी कॉलेज नहीं प्रोवाइड कर रहा है. नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस के लिए कुछ कॉलेजेस की तरफ से नोटिफिकेशन जरूर आए हैं जहां पे 0 फीस ऑफर की जा रही है, बट वो सीटें भी प्योरली काउंसलिंग से मिलेगी. तो अगर आप 100 स्कोर या 50 स्कोर पे सोच रहे हो कि वो सीटें मिल जाएंगी, तो इट विल डिपेंड कि आपके ऊपर वाले क्या करते हैं, आपके हायर रैंक वाले क्या करते हैं. बट विदाउट एनी डाउट पैथोलॉजी में अभी तक कहीं से कोई भी ऑफर नहीं आया है. इफ समवन इज ऑफरिंग यू, बिलीव मी, नॉट गोना पॉसिबल, बिकॉज यू कैन ऑल्सो थिंक इवन ऑन द स्कोर ऑफ 10 और -20 people are eligible and they are willing to take the seat. हायर क्लिनिकल नहीं मिलेगा, जिनके पास बजट का इशू है वो पैथोलॉजी और PSM लेंगे, फिर फार्माकोलॉजी लेंगे, माइक्रोबायोलॉजी लेंगे, FMT लेंगे, माइक्रोबायोलॉजी लेंगे, बायोकेमिस्ट्री लेंगे. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि नेगोशिएशन या डिस्काउंट वहाँ पे मिलेगा. मेनली वो कॉलेजेस प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे डिमांड ना हो या जहाँ पे एग्जैक्टली आज तक उनकी इन लोअर नॉन क्लिनिकल सीटें नहीं फिलअप हुई हैं. बट दोज आर प्रीमियम कॉलेजेस, आज जहाँ पे कॉलेजेस अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी है, जहाँ पे पेशेंट लोड है, वो कॉलेजेस आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं. स्पेशली आई विल रिक्वेस्ट, अगर आप पैथोलॉजी, PSM या पैरा क्लिनिकल या लोअर क्लिनिकल में जा रहे हो, इवन नॉन क्लिनिकल का कॉन्सेप्ट रिलीज कर दिया गया, मतलब नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस को भी अभी क्लिनिकल बोला जाएगा एज पर द लेटेस्ट गवर्नमेंट प्रॉस्पेक्टस एंड एवरीथिंग. फर्दर चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे. बट अगर आप लोअर क्लिनिकल ब्रांचेस के लिए भी जा रहे हो तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कहाँ से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. इवन अगर आप पैथोलॉजी भी देख रहे हो एट द एलिजिबिलिटी स्कोर, देन वी कैन डू द प्रीमियम कॉलेज एट द बजट रेंज अराउंड 30 to 50 लाख इन कंप्लीट पैकेज. कहाँ पे मिल सकती हैं, कैसे मिल सकती हैं, फॉर ऑल दोज डिटेल्स यू कैन कॉन्टेक्ट मी. एज वेल इफ यू लुकिंग फॉर हायर क्लिनिकल ब्रांचेस, देन अगेन you can contact me and available premium counseling services. The complete detail is available on our website admissionmedia.in. At the meantime, if you have any confusion or कोई भी question है तो you can contact me on the given number below. That is 9545955519. Thank you and thank you so much for watching this video and wish you all the very best. And team Admission Media as well as everyone is praying कि आपके अकॉर्डिंग आप जो भी ब्रांच की मनोकामना रख रहे हो या जो भी ब्रांच आप टारगेट कर रहे हो या जिस भी ब्रांच को आप चेज करो, इट विल बी अलॉटेड टू यू. वी आर विशिंग यू द ऑल द वेरी बेस्ट फॉर इट. इन द मीन टाइम अगर आपको हमसे मिलना है या अपॉइंटमेंट चाहिए तो हमारे ऑफिस बैंगलोर एज वेल एज पुणे में आप कभी भी आकर हमसे विजिट कर सकते हो एंड वी कैन डिस्कस आउट कि कहाँ पे सीटें मिल सकती हैं, किस बजट में मिल सकती हैं, कैसे काउंसलिंग अपेयर करना चाहिए. थैंक यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.